structure. Am I audible? Oh, can be divided into three structures: pre-independence and 1947 to 1991 and 1991 to beyond. Okay. So basically, all the necessary facts are mentioned in your notes. So I will not be talking about those facts. So basically, when it comes to banking, there are some concepts that are important from exam point of view. We will cover those. Let us just first we will go through whatever the notes that you will get after this lecture, and what is important from that notes from these notes. Okay. So there, in basically bank as a term, uh, it evolved in the medieval Europe in Venice city. There was a place called Banco Rosso, and that place in Venice, there was a city called Venice, and that place was the place where uh, various what we can say as businessmen and other banker businessmen and other the साहूकार जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो आते थे और वो कुछ लोन की लेन देन करते थे। कोई किसी को अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसको लोन देते थे, किसी को अगर कुछ वस्तुओं की जरूरत है तो वो उसे प्रोवाइड किया जाता था। तो उस टर्म से बैंको रोसो इस जगह से बैंक ये टर्म ओरिजिनेट हुआ था। भारत में भी इस प्रकार की सिस्टम बहुत सालों पहले से ही इवॉल्व हो गई थी, तो उसको हुंडी अ, उसको श्रेणी कहते हैं। तो हर जो बिजनेस था, जो मतलब कुम्हार का बिजनेस हो तो उसका एक अलग श्रेणी होगा, कारपेंटरी का बिजनेस हो तो उसका अलग श्रेणी होगा, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस तो उसका अलग श्रेणी होगा। तो वैसे सब होता था। लेकिन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो इन मॉडर्न सेंस बैंकिंग इन इंडिया developed only with the arrival of Britishers, and uh, in 1770 the Bank of Hindustan was established. It was the first bank in India. The name was Bank of Hindustan, but it was not established by any what we can call an Indian person. All the capital that was in that bank was owned by Europeans or Britishers. In that sense, it was not purely Indian bank, but after some years, Oud Commercial Bank or our Commercial Bank was established, and that our Commercial Bank was the first bank with the capital of Indians in it. And later on in 1900s, it was closed due to lack of business and other things. So at present, if we take a quick view, at present, Punjab National Bank, it is the oldest functioning bank in India. Uh, Before that, Allahabad Bank was the oldest functioning bank of India, but it got merged into Indian Bank, and in 2017 or 2018. Then now the Punjab National Bank is okay. Punjab National now is it visible? Uh, okay. So Punjab National Bank is oldest bank in India. Okay. Later after this in 1934, Reserve Bank of India was established on as per the provisions enumerated in Reserve Bank of India Act of 1934. Um, in 1st January 1949, Reserve Bank of India was nationalized. ठीक है, so Government of India bought Reserve Bank of India,
and it became central bank of or the uh, centralized bank or central bank of India or Reserve Bank of India or Federal Bank of India. ठीक है. In 1955, uh, Imperial Bank, I mean the Bank of Hindustan that we talked about was merged into Imperial Bank before independence, and in 1955, Bank of Imperial Bank of India was made was taken over by Government of India, and it became State Bank of India. Okay. So you can see this. So Allahabad Commercial Bank was established in 1965. Punjab National Bank was in 1994, 1984. Bank of India in 1906. Bank of Baroda in this. Okay. So all these Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda were once private bank. Okay. So after 1947, there was a period when only State Bank of India was nationalized bank, and there was Reserve Bank of India, right? But basically, what was happening during that period, the banking was the banking industry was very limited, and banking was limited to only urban areas, and that too developed states like Maharashtra and Gujarat, and in the states like especially Bihar or Orissa or other states which were not well developed or having institutional structure, was not having proper banking structure. So banking growth of banking was very limited, and the government was also not getting benefit from the banking industry. Okay. So in the sense that in 1969, or specifically in July 1969, Government of India nationalized 14 banks. I mean, Government of India. What is the meaning of nationalization? Government of India bought the 14 banks by paying the decided amount to the original owner, and the 14 banks were made public sector banks. So in 1969, it was the beginning of nationalization of bank. Then 14 banks were nationalized. Then again in 1980, some 6 banks were nationalized. So this was the period when banking industry was dominated by the uh, government, and it also helped in growth of banking industry, growth of in horizontal and vertical. That means growth. States like Odisha, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, they received banking. They uh, Many bank branches or many banking activities were started in these uh, uh, what we can call them as a uh, less developed state or least developed states. Okay. And after that, and apart from that, bank branches were also opened in semi-urban and rural areas. Okay. Having said that, still the rural area was not uh, very well served with the banking facilities. So our Nursing Home Committee uh, recommended the formation of regional rural banks. So in by the Act of RRB was 1976. Okay, the Act was 1976, but it was established by 1975. Okay, Act was 1976. Act was 1976, but it was established by 1975. अच्छा. सो ये जो बेसिकली व्हाट वाज क्या हो रहा था कि जो रूरल एरिया था, ग्रामीण जो इलाका था, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज इतने डेवलप नहीं थे,
वहाँ के जो शेतकरी थे, वहाँ का जो कामगार वर्ग था, उनको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल रहा था, लोन नहीं मिल रहा था। और उसके कारण क्या हो रहा था कि जो साहूकारी थी, यूजरी जिसे हम लोग कहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी। और साहूकारी एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से जो लाखों करोड़ों जो गरीब किसान लोग हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो ग्रामीण भारत में रहते हैं, उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और बैंकिंग इंडस्ट्री का विकास, जो ग्रामीण भाग है भारत का, ग्रामीण जो इलाका है, जहाँ पे 65-70% ऑफ द पॉपुलेशन, जो भारत की जो लोक संख्या थी, 65-70% जो लोक संख्या थी भारत की, वो रह रही थी। उसके लिए नरसिम्हम कमेटी ने एक रीजनल रूरल बैंक यानी प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापन करने का एक रिकमेंडेशन दिया। और उनके रिकमेंडेशन के तहत एक ऑर्डिनेंस पास किया, या फिर एक अध्यादेश पास किया गवर्नमेंट ने। और उस अध्यादेश के तहत 5 राज्यों में, जो कि उत्तर जो राज्य थे, उत्तर यानी वहाँ पे हरियाणा था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था और मध्य प्रदेश था। ये जो 5 राज्य थे, उन तो हरियाणा में दो, सॉरी, उत्तर प्रदेश में 2 बैंक थी। ये 5 रीजनल बैंक का गठन हुआ 1975 को। फिर उसके बाद ये चलता रहा। फिर 1980 में और 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। और बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी तरह डोमिनेट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कर रहा था। प्राइवेट बैंक्स को परमिशन नहीं थी, कोई भी प्राइवेट बैंक एस्टेब्लिश नहीं कर सकता था। अगर ब्रांच ओपन करनी हो तो भी रिजर्व बैंक की परमिशन लगती थी। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। पूरी तरह से हम लोग जिसे कह सकते कि सोशलिस्टिक एटीट्यूड अप्रोच था गवर्नमेंट का बैंकिंग के कारण। तो इसके चलते हुआ यूँ कि 1991 तक आते आते भारत में कई सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए थे। भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी जो विदेशी जो मुद्रा होती है, जो विदेशी जो चलन होता है, वो बहुत कम हो गया था। और भारत का इकोनॉमिक जो स्टैग्नेंट हो गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी। अ, भारत में जो ये था, इन्फ्लेशन था, वो बहुत ऑलमोस्ट 13% इतना बढ़ गया था। तो इसके चलते भारत ने एक मॉडल अप्रोच मॉडल वो एक मॉडल अडॉप्ट किया। उस मॉडल को कहते हैं पी एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल। तो उस एलपीजी मॉडल के तहत भारत ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। और प्राइवेटाइजेशन शुरू करने के बाद जो नए प्राइवेट बैंक थे, उनको लाइसेंस मिला। उनमें से इम्पोर्टेंट बैंक थे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, डॉइच कमर्शियल बैंक एंड इंड बैंक। ठीक है, तो ये ऐसे बैंक थे। तो इनको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शुरुआत हो गया था। और अब की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 4 प्रकार के बैंक हैं, जिनका डेफिनेशन आपके नोट्स में दिया हुआ है। तो शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक में भी 4 सब टाइप है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक एंड आरआरबी। ये 4 प्रकार के बैंक अब भारत में है। और दूसरे जो बैंक हैं वो है नॉन शेड्यूल बैंक। उसका भी डेफिनेशन आपके नोट्स में दिया है। बैंकिंग को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड आरआरबी, इन 3 कैटेगरी में हम लोग इसको बांट सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी जिसका कैपिटल जो है वो 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी ऐसा बैंक जिसका कैपिटल प्राइवेट ओनर के पास है। और आरआरबी में 3 हिस्से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा सबसे कम होता है, 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा 50%, और 35% जो रिमेनिंग है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। उसके साथ ही और एक कैटेगरी है बैंकिंग की, वो है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो पर्टिकुलर
मिशन ओरिएंटेड काम करते हैं या फिर पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करते हैं। जैसे कि नाबार्ड आप देख सकते हैं कि नाबार्ड का गठन हुआ था 1982 में। तो नाबार्ड जहाँ है, नाबार्ड का पर्पज क्या है? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड काम करता है। और नाबार्ड इस सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर और कृषि सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। उसके साथ ही सिडबी करके एक बैंक था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, जिसका भी गठन हुआ था 1990 को। अब ये जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री, जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, और एमएसएमई जिसको हम लोग कहते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए ये सिडबी बैंक का ये हुआ था। तो ये जो बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, तो ये जनरली क्या करते हैं, ये जो बैंक है ये इंडिविजुअल को, यानी किसी जो काश्तकार, जो शेतकरी है, किसान है, उसको, या फिर जो स्मॉल इंडस्ट्री का ओनर है, उसको उसको लोन नहीं देंगे। ये लोग उनको रीफाइनेंस की, यानी पुनर्वित्त, जो हम लोग कहते हैं उसको, पुनर्वित्त करने की एक गारंटी देंगे एक प्रकार से। जो जो किसान, मजदूर, या फिर जो स्मॉल इंडस्ट्री के जो ओनर हैं, इनको लोन देते हैं। तो एक प्रकार से इनके जो सेक्शन, ये जो सेक्शन है, या फिर ये जो इकोनॉमिक सेक्टर है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, और स्मॉल छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे हाथ मांग जैसे कुटीर उद्योग जैसे हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए ये बैंक काम करते हैं। हाँ, so if you have question then please mention it in the chat box। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो फर्स्ट बैंकिंग, मतलब जो फर्स्ट जैसे कहते हैं ना, तो वो दिया है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब रिजर्व बैंक के बारे में अगर देखा जाए, तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक्ट तो 34 का है। ठीक है, एक कमेटी आई थी 1926 में, उसे जॉन हिंटन यंग कमेटी या फिर रॉयल कमीशन फॉर इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहा जाता है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि आप एक भारत का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, रिजर्व बैंक होना चाहिए। तो उनके रिकमेंडेशन के तहत इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण या फिर नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 से। भारत का जो रिजर्व बैंक है, उसका जो हेडक्वार्टर था, जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, तब कलकत्ता में था। लेकिन अब भारत रिजर्व बैंक का जो ये है हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। और कई सारे ऑफिसेस है, उसके कॉलेजेस, स्टाफ कॉलेजेस वगैरह है। तो बहुत तो एक दुनिया का, अगर हम लोग दुनिया के जो सेंट्रल बैंक देखें, जो मध्यवर्ती बैंक देखें, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग, एक इंडिपेंडेंट और एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल सेंट्रल बैंक हम लोग भारत के, फेडरल बैंक हम लोग भारत के बैंक को कह सकते हैं। अभी मतलब जो अभी इश्यूज, जो फिर या फिर क्राइसिस जैसी सिचुएशन आई है 2008 का, अगर सब प्राइम क्राइसिस हो, या फिर और कोई क्राइसिस हो, जैसे कि अभी जो चल रहा है कोविड के जैसे क्राइसिस हो, तो इस सिचुएशन में भारत का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बैंकिंग स्ट्रक्चर, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। भारत का जो बैंकिंग, मतलब स्कैम वगैरह होने के बावजूद भी भारत का बैंकिंग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहा है। इसका बहुत ज़्यादा श्रेय आरबीआई और उसके पॉलिसीज को जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो देखते हैं कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है, कौन से फंक्शन आरबीआई करता है। एक तो सबसे पहले वो जो करेंसी है, जो हम लोग करेंसी इस्तेमाल करते हैं, 1 रुपये की नोट, ठीक है, नो रुपीज, 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स, इनको छोड़ के रिजर्व बैंक जो है वो सभी प्रकार के जो करेंसी है उसको प्रिंट करता है, सर्कुलेट करता है, और उसको मॉनिटर रेगुलेट भी करता है। ठीक है, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको बैंकर की तरह काम करता है। जो बैंकिंग हम लोग आम लोग जो करते हैं, उसी प्रकार का बैंकिंग जो सर्विस होता है, वो गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करता है। जो नेसेसरी जो लोन है या फिर जो मॉनेटरी हेल्प है, वो प्रोवाइड करने का काम आरबीआई करता है। बैंकर बैंक,
ठीक है। जो शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं उनके लिए ये भी जो बैंकर्स बैंक है यानी उनके बैंकों का भी काम करता है। ठीक है, उनको टाइमली क्रेडिट दिया जाए हो या फिर उनको उनके पास मनी सप्लाई बढ़ाना हो कम करना हो वगैरह, ऐसे सब कामों में या फिर उनको कोई असिस्टेंस की जरूरत हो तो ऐसे सब कामों में बैंक जो आरबीआई जो है वो बैंकों को अदर बैंकों को हेल्प करता है, उनको एक गाइडलाइन देता है। उसके साथ ही एक कंट्रोलर ऑफ द बैंक भी है, जो शेड्यूल्ड बैंक है स्पेशली, और जो आरआरबी है कोऑपरेटिव बैंक वगैरह जो है उन पे आरबीआई बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आता है, बहुत बहुत एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी उनके ऊपर रखता है, ताकि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है जो इकोनॉमी का वो एक लाइन में रहे, ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे ये ना हो, प्रॉब्लम ना हो या फिर जो एक मोनोपोली क्रिएट ना हो, ऐसे कामों में आरबीआई करता है। उसके साथ ही लिक्विडिटी यानी जो मनी सप्लाई है जो है मार्केट में या फिर जो क्वांटिटी है मनी का, पैसे का जो क्वांटिटी वो कितना हो, क्रेडिट का जो क्वांटिटी वो कितना हो, ये सब डिसाइड करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ये इसके साथ जो अलग अलग टूल है ये सब करने के लिए, तो उन टूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये आप पहले आप ये समझ लो कि आरबीआई का ये फंक्शन है। ठीक है। अब उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू। एक्सटर्नल वैल्यू मतलब क्या? भारत का जो करेंसी है रुपीस, उसका जो एक्सटर्नल ये है करेंसी है, जैसे डॉलर है, यूरो है, ठीक है, ये सिंबल यूरो का नहीं है, यूरो वगैरह ऐसे जो सिंबल जो हार्ड करेंसी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगा अ, उसका मेंटेनेंस करने का काम आरबीआई करता है। अभी फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का जो रुपी है वो अभी 78 रुपीज के आसपास है। मतलब इसका मतलब क्या है, $1 मुझे अगर खरीदना होगा तो मुझे मेरे पास से 78 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये भारत के लिए मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है ये, लेकिन डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे आरबीआई का स्ट्रक्चर दिया है क्या, कैसा है, क्या होता है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आरबीआई के बारे में दिया है। यहाँ पे बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं वगैरह ये सब आपके नोट्स में दिया है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बहुत ही आसान से मतलब डेफिनेशन है, इसके लिए मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली बैंकिंग फंक्शन होता कैसे है कि ये एक बैंक है समझो, यहाँ पे निकला है, ये एक बैंक है और यहाँ पे ये जो दो पर्सन है ए और बी, इन्होंने कुछ रुपए बैंक में रखे और एक्स और वाई ये जो दो पर्सन है इनको अब बैंक से लोन की जरूरत है। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक कोई भी बैंक क्या करेगा, इनको अगर रेट ऑफ इन्होंने अपना पैसा जो है बैंक में रखा है तो उनको भी कुछ इंटरेस्ट देगा, वो समझ लो वो होगा 5%। ठीक है, वो 5% होगा। इन्होंने 10,000 रखे तो 10,000 रुपये 5% इनको ब्याज मिलेगा बैंक से, और बैंकों ने इन्हें लोन दिया है तो बैंक इनसे इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बैंक लगाएगी इनको, तो वो होगा 8% मान लो आप। ठीक है, तो ये जो बीच का ये जो डिफरेंस है 3% का, ये होगा बैंक का इनकम या फिर बैंक का प्रॉफिट। ये होगा मतलब इनकम होगा, प्रॉफिट तो मतलब नेट होगा, तो प्रॉफिट तो अलग बात है। बैंकिंग सिस्टम सिंपलेस्ट टर्म में अगर कहा जाए तो इसी बेसिस पे वो वर्क करता है। तो बैंकिंग के चार टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में कौन सा अकाउंट क्या है, मतलब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कंसेप्चुअल यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं ये करूँगा। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर अब देखें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी क्या, एक तो वो एसेट है सबसे बड़ी बात
और ऊपर से वो नॉन परफॉर्मिंग है। अब इन तीनों जो शब्द है इनका मतलब देखते हैं या फिर इसका डेफिनेशन देखते हैं कि बैंक जो लोन देता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बैंक एक्स और वाई पर्सन को लोन दे रहा था। तो वो जो लोन बैंक को दे रहा, बैंक उन लोगों को जो दे रहा है लोन, वो बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक का क्या है, एसेट है। क्योंकि उनको ये जो लोन है वो एक प्रकार का एसेट है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। उसको इन्वेस्ट करने के बाद, उसको देने के बाद बैंक को क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक जितना देगी पैसा, उससे ज्यादा उसको रिटर्न मिलेगा। तो वो बैंक का क्या हो गया, एसेट हो गया। लेकिन जब कोई वो जो लोन है वो रिपेमेंट नहीं करता है, ईएमआई वगैरह नहीं भरता है, 90 महीने दिन के लिए या फिर 3 महीने के लिए ईएमआई वगैरह नहीं भरता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग, यानी वो अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। यानी वो जो रिटर्न दे रहा था उसके जो उसके एसेट पे जो रिटर्न मिल रहे, उसके एसेट पे जो रिटर्न मिल रहे थे वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो उससे हम लोग कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है, उसको कुछ स्टेप्स दिए हैं कुछ सॉल्व करने के, और वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये एक इंश्योरेंस ये सब्सिडरी है आरबीआई का, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ है। ये क्या करती है, दो काम करती है। एक तो जो डिपॉजिट, जो कॉमन लोग हैं, हम मेरे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं, जो बैंकों में अपना हार्ड अर्न मनी रखते हैं, तो उनको जो डिपॉजिट करते हैं उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस देता है। और जो बैंक है, जो अपना जो पैसा है वो लोन देती है बिजनेसमैन को वगैरह। ठीक है, इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन को लोन देती है। तो उस लोन को या फिर क्रेडिट की गारंटी भी देता है ये। डिपॉजिट को इंश्योरेंस देता है और क्रेडिट को गारंटी देता है। ठीक है, तो ये है आरबीआई का, ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है मैं एम आई सी आर वगैरह जो इम्पोर्टेंट कोड वगैरह है यहाँ पे दिए हैं, इसका फुल फॉर्म दिया है और इसका पर्पस भी दिया है, क्या है इसका मतलब मीनिंग क्या है वो भी दिया है। तो कंसेप्चुअल यहाँ पे कुछ नहीं है पार्ट, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये भी जो पेमेंट के अलग अलग मोड है, एनपी, एनईएफटी वगैरह, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन आपके नोट्स में किए गए हैं। एटीएम, एटीएम के प्रकार दिए गए हैं, वो भी आपको डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन से या फिर माइज द फॉलोइंग जनरली ऐसे पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सब है। हम लोग देखते हैं कि बैंक जो है, कोई भी बैंक जो है वो किस प्रकार के रिस्क उठाता है। रिस्क, 7 प्रकार के रिस्क होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। यानी जो लोन दिया जाए, लोन दे, अगर वो बैंक ने रिपेमेंट, बैंक को रिपेमेंट उसका हुआ नहीं, लोगों ने इंटरेस्ट भरा नहीं है, प्रिंसिपल नहीं भरा है, तो बैंक का जो पैसा होता है वो पूरा चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, तो उसको क्रेडिट रिस्क कहेंगे। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क यानी क्या, जैसे कि एरर हो या फिर कोई टेक्निकल इशू की वजह से हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए लोगों के प्रॉपर्टी को या फिर इसके ऊपर। ठीक है, तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट होते हैं, टेक्निकल एरर वगैरह, तो उसको क्या कहेंगे, ऑपरेशनल रिस्क। दूसरा होता है मार्केट रिस्क, तीसरा होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क एसोसिएटेड विद बैंक एक्टिविटीज इन कैपिटल मार्केट स्पेशली। यानी कोई भी बैंक जनरली जो होता है वो लोन के थ्रू तो पैसे कमाता ही है, लेकिन बैंक जो पैसे होते हैं वो अब जो मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाजार जो होता है, वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू करता है या फिर इक्विटी के थ्रू करता है। ठीक है, अगर इक्विटी के थ्रू केयर करे या फिर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इन्वेस्ट करे और नुकसान हो जाए, वो शेयर का वैल्यू कम हो जाए, शेयर का प्राइस कम हो जाए,
तो उसको क्या होगा, बैंक का नुकसान होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मार्केट रिस्क कहेंगे। उसका देन होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि अगर उसके जो डे टू डे ट्रांजैक्शन हो या फिर डेली ऑपरेशन जो हो, उसको टाइमली मैनर में कंप्लीट करने की इनएबिलिटी किसी भी बैंक की, उसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी। यानी बैंक के पास लिक्विडिटी ही नहीं है, बैंक के पास बिजनेस नहीं है, इसके लिए लिक्विडिटी नहीं है, तो ये लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। यानी लिक्विडिटी यानी क्या, पैसा नहीं है बैंक के पास, पैसा नहीं है। अगर किसी को कैश निकालना हो तो कैश होगा नहीं बैंक में, या फिर कोई लोन चाहिए तो लोन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा जो होगा उसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के 5-6 प्रकार के रिस्क है। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का मतलब क्या है, ऑम्बुड्समैन का मतलब क्या है। अ, अगर मैं एज अ कस्टमर किसी बैंक में जा रहा हूँ और मुझे सर्विस चाहिए, मतलब अगर लोन चाहिए या फिर मुझे अकाउंट ओपन करना है, या फिर मुझे कुछ जैसे कि ये करना है, अ, पैसे भेजने हैं या फिर जो भी है, और मुझे बैंक से जो बैंक का जो स्टाफ होगा या फिर जो भी होगा, उससे बराबर सर्विस नहीं मिल रही है, कुछ इशू हो रहा है सर्विस मिलने में, तो मैं ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी जो एक जैसे कि एक लोकपाल की तरह होता है ये, ठीक है, तो वो हम लोग वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि इसका गठन हुआ था 1995 में। ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1995 में हुआ था। ठीक है, तो ये है अपॉइंटमेंट टेन्योर, ये गवर्नमेंट अपॉइंट, आरबीआई अपॉइंट करता है। ओके, वहाँ पे दिया है लेकिन ये मतलब आप बैंक के खिलाफ या फिर बैंक के ब्रांच के खिलाफ या बैंक के एम्प्लॉय के खिलाफ आप जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और आपको क्या मिलेगा, आपको न्याय मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे जो बेसल लॉ है, बेसल करके एक जगह है स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे ये हुआ था कि बेसल नॉर्म जो कहते हैं हम लोग, तो ये होता है कि बेसिकली जो ऊपर जो रिस्क देखा हम लोगों ने, उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। अगर बैंक अपने एबिलिटी से ज़्यादा ले हाँ, एबिलिटी से ज़्यादा अगर लोन दे दे, ठीक है, तो बैंक को क्या होगा, जो एनपीए है वो बढ़ जाएगा, और एनपीए बढ़ने के कारण क्या होगा, बैंक बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ये जो कमिटी है, ये जो बेसल नॉर्म है, ये बैंक को एक बफर प्रोवाइड करने के लिए, एक शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड करने के लिए कुछ रेगुलेशन देती है, प्रोविजन कुछ देती है। तो इसके चलते बैंकिंग इंडस्ट्री ये थोड़ा ये रहता है, कंट्रोल में रहता है, रिस्क थोड़ा उसका कम होता है, ऊपर जो देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है कि बेसल नॉर्म क्या है, बैंकिंग में जो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क, उसको कम करने के लिए ये वर्ल्ड ओवर नॉर्म है। ठीक है, भारत ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि रिजर्व बैंक क्या करता है, सेबी यहाँ पे लिखा है, सेबी क्या करता है, आईआरडीआई क्या लिखा है, सेबी करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ये तो एक रेगुलेटरी है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी है, जो रेगुलेशन भी करता है और डेवलपमेंट भी करता है, ऐसा है। ठीक है, स्मॉल बैंक डेफिनेशन दिया है स्मॉल बैंक का, कब शुरू हुआ था वगैरह सब एक्सप्लेन किया है। ये कुछ नए स्मॉल बैंक है, उनका हेडक्वार्टर दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने नाबार्ड के बारे में देखा, नाबार्ड क्या करता है, हेडक्वार्टर वगैरह, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस 1980 में इसका 1982 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब ये सिर्फ आपको जो चेयरमैन है ये अपडेट करना है।
ठीक है, यू जस्ट हैव अपडेट द चेयरमैन और चेयरपर्सन। सीध भी दिखाए, ये भी सब आपको अपडेट करना होगा। इनका जो नाम है एक्सिम बैंक, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हाउसेस हैं, जो एक्सपोर्ट में या फिर आयात निर्यात में जो है, उनको सिक्योरिटी देता है, इंश्योरेंस देता है और लोन फैसिलिटी भी ये देता है। ठीक है, इसको भी आपको अपडेट करना होगा। से नेशनल हाउसिंग बैंक, जो हाउसिंग सेक्टर के जो फाइनेंशियल कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, उनको ये रिफाइनेंस देता है। ठीक है, ठीक है। अब ये, हाँ, इसको बारे में हम लोग देखते हैं कि मनी मनी मेजर मनी क्या भी है, एक्सप्लेन किया गया है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिएट मनी, इट इज अ लीगल टेंडर दैट इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल एंड कंप्राइजेस और एनी अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री फॉर पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग फिएट मनी, जो सबसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हमारा रुपीज है, ठीक है, लीगल टेंडर। उसके बाद कमोडिटी मनी, यानी जो बार्टर सिस्टम होता है ना, चेक, बैंक नोट, ये बार्टर सिस्टम है। चेक, कमर्शियल बैंक मनी, ये हम लोग अभी एक 10 मिनट में देखेंगे कि इसका क्या है। नेशनलाइजेशन बैंक मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 बार हुआ था, 1969 में और 1980 में। अब यहाँ पे जो आपके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बैंक एश्योरेंस एक्सप्लेन किया था मैंने, एटीएम एक्सप्लेन किया था, अलग अलग टर्म्स दिए था। अब हम लोग देखिए कंसेप्चुअल जो है बैंकिंग के रिलेटेड क्या है, कैसे कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है? तो ये आपका जो इसके नीचे ही आपके बहुत सारे एब्रीविएशंस दिए हैं, उसमें से ही आप अगर करके जाओगे तो आपको उसका बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिट होगा। ये एब्रीविएशन है बहुत सारे, तो वो आपको करना है। Rest is factual information. Now I will explain some notes, some concepts that are important from exam. हम लोग देखते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की 3 मेथड है। एक इनपुट मेथड, इनकम मेथड, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड से अगर हम लोग जीडीपी हमें अगर कैलकुलेट करना होगा, तो हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। जीबीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका मतलब होगा जो टोटल वैल्यू ऐड होता है, उसका वैल्यू, टोटल वैल्यू जो ऐड होता है उसका अमाउंट। ठीक है, वो है आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस बी, यानी रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये कौन भरता है? अगर आप समझ लो कि ये जो 50,000 यहाँ पे जो लिखे हैं, ये किसी बाइक की कीमत है। ठीक है, एक बाइक है, उसकी कीमत है 50,000। तो उस 50,000 में कौन से फैक्टर होंगे, कौन से जो हम लोग कहते हैं कि टाइप होंगे, फैक्टर होंगे, वो 4 प्रकार के होंगे। रेंट होगा, वेजेस होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा। रेंट कौन भरेगा, जो मतलब रेंट कौन देगा या फिर कौन लेगा? जो लैंड है, जिस लैंड पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो खड़ी है, या फिर जो ऑफिस है जहाँ पे ये हो रहा है सब,
तो मशीनरी है अगर कोई भाड़े पे ली गई हुई, तो उसका लैंड और मशीनरी का या फिर ऑफिस स्पेस का जो भी रेंट होगा वो इसमें आ जाएगा। वेजेस, जो वर्कर है, वर्कर वगैरह जो है वहाँ पे मैनेजर स्टाफ के जो वर्कर है, उनके जो वेजेस होंगे, उनके जो पेमेंट होंगे वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे इसके फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल कॉस्ट में। इंटरेस्ट, अगर मतलब बैंक से लोन लिया है कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए, तो वो ईएमआई भरना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट भी कहाँ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। और प्रॉफिट, ये सब जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमाने के लिए है, पैसे कमाने के लिए है, और जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो जीबीए कैलकुलेट करने के लिए इन चारों को हम लोग इनका एडिशन करेंगे और हमें किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये एग्जैक्टली फाइनल वैल्यू नहीं होगा, ये जो एमआरपी जिसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे एमआरपी वगैरह भी एडिशन होता है, जैसे कि एमआरपी में टैक्सेशन वगैरह लगता है, तो ये यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो नेशनल इनकम की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें इसके हिसाब से, तो राष्ट्रीय उत्पन्न या फिर नेशनल इनकम की डेफिनेशन ये होगी कि नेशनल इनकम, द इनकम अर्न, यानी जो कमाया है इनकम वो, नेशनल इनकम, द इनकम अर्न ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, जो सारे घर है, हाउस होल्ड जो है, और जो कंपनियां हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर में नेशन के अंदर, मतलब भारत के अंदर जो भी इनकम अर्न किया है, इसका टोटल, तो हम लोग इसको कहेंगे नेशनल इनकम। दो कंसेप्ट है, एक हाउस होल्ड और फर्म्स, इनका टोटल इनकम, अर्न इनकम, यानी जो एक्चुअली अर्न किया है वो इनकम। ठीक है, और नेशन के अंडर, यानी ये भारत के ज्योग्राफी के अंडर जो है वो, मतलब भारत के बाहर अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो पैसे कमा रहा है, रेंट कमा रहा है, वेजेस कमा रहा है, तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद प्रोडक्ट मेथड, अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से ये कैलकुलेट करें तो जीबीए होगा, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, जी प्लस एस प्लस माइनस आई सी। अब जी है वैल्यू ऑफ गुड्स, एस है वैल्यू ऑफ सर्विसेज, आई है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, कोई भी मतलब कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, अगर ये मैं पेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक बॉटल की बात कर रहा हूँ, तो इस बॉटल को फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा, यानी ये प्लास्टिक है, उसके लिए मशीनरी है, वगैरह वगैरह, अगर समझो इसमें प्लास्टिक या फिर दो तीन कलर के प्लास्टिक है, केमिकल है, वो इसमें जा रहे हैं, तो उन सब का कॉस्ट, दूसरे भी एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए कि डोनट बनाने वाला एक फैक्ट्री है, डोनट या फिर ब्रेड बनाने वाला फैक्ट्री जो है वो, ठीक है, तो वो जो फैक्ट्री होगा, ब्रेड या डोनट बनाने फैक्ट्री जो होगा, वो क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा, जो गेहूँ लगेगा या फिर जो भी मैदा वगैरह जो भी है वो लगेगा, या फिर जो इसेंस वगैरह जो लगेगा, शुगर लगेगा, और कुछ जो रॉ मटेरियल लगेगा। तो ब्रेड के फाइनल जो ब्रेड या फिर डोनट का अगर 10 रुपया है, यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेरी गुड, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर हम लोग फाइनल जीबीए निकालने के लिए हम लोग ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो इसमें से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ये क्यों होगा? डबल काउंटिंग को कम करने के लिए, फिर डबल काउंटिंग को निकालने के लिए हम लोग ये ऐसा करेंगे। ठीक है, इसके मेथड से, मतलब प्रोडक्ट मेथड से अगर हम लोग नेशनल इनकम निकाले, तो प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम का वैल्यू होगा, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल, इट इज द monetary value of all final goods and services produced within nation, यानी ये भी जोग्राफिकल बाउंड्री में ही है, लेकिन फाइनल गुड्स,
है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, ये नोट भी आपको मिलने वाले हैं, सो डो नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, ऑलरेडी सेंड किए गए हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। अब तीसरा मेथड होगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, जीवी है या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका होगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होगा एक्सपेंडिचर मेथड से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जी सी है कंजम्पशन, यानी कोई भी एक्सपेंडिचर जो होगा वो दो प्रकार का होगा। एक तो वो कोई चीज कंज्यूम करने के लिए होगा या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा। मेरे पास 10,000 है, 10,000 में से मैं 6,000 जो है मेरा रेंट भरता हूँ, तो वो मेरा कंजम्पशन है। मतलब मैं रेंट कंज्यूम मतलब मैं घर खाता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, तो वो मेरा कंजम्पशन है। और 4,000 का मैं SIP डालता हूँ, ठीक है, मेरा म्यूचुअल फंड में डालता हूँ या फिर RD डालता हूँ 4,000 का। तो 4,000 मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दोनों मेरे खर्चा ही है। एक तो मैं खर्चा करूंगा, एक तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर खुद के एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए। तो वो हो जाएगा C+G। अब यहाँ C+I और यहाँ पे G आ जाता है। ये G है, ये गवर्नमेंट कंजम्पशन है। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करता है। गवर्नमेंट भी मतलब रोड बनाने हैं, सड़कें बनानी हो, या फिर जो नई फैक्ट्री डालनी हो, या फिर पानी प्रोवाइड करना हो, डैम बनाना हो, या फिर कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी हो, ये सब जो है, कोई प्रोविजन करनी हो, कोई पॉलिसी करनी हो, ये सब गवर्नमेंट क्या करता है, कंजम्पशन करता है। उसमें से अगर मतलब हम लोगों ने कंजम्पशन मिलाया, एक्सपेंडिचर मिलाया, इन्वेस्टमेंट मिलाया, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट कंजम्पशन मिलाया, और अगर हम लोगों ने उसमें से अगर हम लोगों ने उसमें से ये एक्स और एम को घटा दिया, ठीक है। एक्स क्या है, एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंजम्पशन होगा, एक्सपोर्ट कंजम्पशन मतलब कोई भी चीज बाहर भेजने के लिए जो कंजम्पशन होगा वो, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो, कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर जो होगा वो, और इंपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो। अगर मेरा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इनपुट से, तो ये मेरा ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये मेरा अगर एक्सपोर्ट मेरा अगर कम है, तो मेरा ये निगेटिव होगा। ठीक है, इस बेसिस पे एक्सपेंडिचर मेथड पे हम लोग अगर कैलकुलेट करें नेशनल इनकम, तो वो उसका वैल्यू डेफिनेशन हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, एंड द नेट वैल्यू, यानी एक्स माइनस एम, नेट वैल्यू ऑफ import and export, net value of exports and imports in a given financial year। ठीक है, नेट वैल्यू। ओके, और इस के हिसाब से अगर हम लोग जीडीपी की डेफिनेशन देखें, तो जीडीपी की डेफिनेशन होती है, इट इज अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी यानी जो अ, इसमें कैलकुलेट की है, पैसों में कैलकुलेट की है वो, और मार्केट वैल्यू मतलब ठीक है, मैंने मॉनिटरी मतलब लेबर और कैपिटल में कैलकुलेट की है वो, और मार्केट वैल्यू जो मार्केट में है वो, ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, जो भी फिनिश्ड गुड्स है, फाइनल गुड्स है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्रीज बॉर्डर। ये देश के जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में, जोग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जो भी अगर इसका कंस्ट्रक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा फिनिश्ड गुड्स का, सर्विसेज का, तो उसको कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में। तो जीडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा जीबी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर एक कंसेप्ट है। जीडीपी डिफ्लेटर ये जो एक कंसेप्ट है वो इन्फ्लेशन
के लिए है एक्चुअली, लेकिन इसका मतलब ये है कि अ, दो प्रकार का जीडीपी होता है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, वो किसी बेस ईयर पे होता है, यानी ऐसा ईयर जहाँ पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा नहीं हो, मानसून अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा है, ऐसा जो ईयर है वो। और इस साल का जीडीपी उसे हम लोग कहेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, यानी जो करंट वैल्यू होगा और बेस वैल्यू होगा। अब फिलहाल बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, ये उनका अभी बेस ईयर है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होगा जीडीपी डिफ्लेटर का, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, अब जीडीपी के बाद का कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट होगा जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दो फर्क है। एक, ये नेशनल है, मतलब एक ही बेसिक फर्क है, ये नेशनल है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बेसिक फर्क है। जीडीपी क्या है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जो बाउंड्री है, पर्टिकुलर जोग्राफिकल बाउंड्री है पर्टिकुलर देश की, उसको ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जीएनपी कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या करते हैं, जो भारत के जो भारतीय जो लोग हैं, भारत के जो सिटीजन हैं, उन्होंने फॉरेन कंट्री में अर्न किया हुआ, अर्न जो जो सिटीजन है उन्होंने फॉरेन कंट्री में कमाया हुआ इनकम, एक्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेनर है, यानी जो भारत के बाहर से देश, बाहर से देश से आए हैं भारत में, और वो कुछ इनकम कमाई कर रहे हैं, तो उनका इनकम होगा एम। तो अगर हम लोग ये देखें, जीएनपी अगर देखें तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, यानी भारतीय जो सिटीजन हैं वो बाहर के देशों में जितना पैसा कमाता है, उससे, उस पैसों में से, उस वैल्यू में से हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेनर लोग हैं, जो फॉरेनर लोग भारत में पैसा अर्न करते हैं, उसको हम लोग अगर माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे जीडीपी में एक जोग्राफिकल कंस्टेंट था, तो वो नेशनल प्रोडक्ट में, जीएनपी में हम लोग को जोग्राफिकल कंस्टेंट क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली ट्रू सेंस में हमें मिलता है कि भारत के सिटीजन ने कितना इनकम कमाया है, या फिर उनका नेशनल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, भारत के कंटेक्स्ट में जीएनपी जो होता है वो हमेशा जीडीपी से ज़्यादा होता है, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्री में ज़्यादा कमाते हैं, इससे जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं भारत में जितना कमाते हैं उससे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर हम लोग जीडीपी से या फिर जीएनपी से डिप्रिसिएशन, यानी जो घसारा है वो निकाल दे। घसारा क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है,
ये कोई भी एक मशीन हो, इंस्ट्रूमेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, तो मशीन जो होगा, इंस्ट्रूमेंट जो होगा, उसमें वियर एंड टियर होगा, यानी उसमें वो पुराना हो जाएगा, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत होगी, उसको मेंटेनेंस की जरूरत होगी। तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन जो होगा, यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने एक मशीन खरीदा, उसका वैल्यू है 10 लाख रुपया। तो वो साल भर चला अच्छे से, लेकिन साल भर के बाद उसमें वियर एंड टियर चालू होता है, क्योंकि वो मशीन है वो खराब होगा, उसमें मेंटेनेंस लगेगा। तो मेंटेनेंस करने के लिए, उसके कुछ स्पेयर पार्ट बदलने के लिए जो खर्चा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे। जनरली ये 10 to 15% माना जाता है। ठीक है, मतलब 10 लाख अगर वैल्यू है उस मशीन का 2000 मतलब ये साल में, तो अगले साल उस मशीन का वैल्यू क्या होगा, 9 लाख होगा। तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा किससे, जो हमारा एक्चुअली फाइनल वैल्यू और गुड्स एंड सर्विसेज जो है, यानी जो हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल वैल्यू है वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसमें से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। वही चीज अगर हम लोग जीडीपी के साथ करें, अगर हम लोग जीडीपी से डिप्रिसिएशन निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। जनरली ये 10 to 15% होता है। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? ठीक है, उसके बाद ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में इतने नहीं पूछे हैं। ये यहाँ पे दिया है कि जीडीपी और ये क्या है। ठीक है, पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, वो लाया था कार्ड कैश में, यही आपको अगर पता होगा तो भी आपको चलेगा। ठीक है, यही आपको पता है तो चलेगा। ठीक है, अब दूसरा जो मैं बताया था कि मनी स्टॉक के बारे में हम लोग देखते हैं कि मनी स्टॉक क्या है। मनी स्टॉक दो प्रकार का होता है। एक डिमांड डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट्स दैट आर, आई मीन जो डिपॉजिट है बैंक में, दैट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड ऑफ द विड्रॉई। यानी मैं बैंक में जाता हूँ, मैं मेरा कुछ अकाउंट है बैंक में, तो मैं एटीएम में जाता हूँ, 2000 मुझे निकालना है तो मैं 2000 का डालता हूँ, अमाउंट डालता हूँ, पिन वगैरह डालता हूँ, और मुझे 2000 रुपये मिल जाते हैं। वो मेरे पैसे हैं, मैंने बैंक में डिपॉजिट किए थे, लेकिन मुझे चाहिए, मैंने डिमांड किया और मुझे तुरंत वो मिल गए पैसे। मैं बैंक में जाता हूँ, मैं जो विड्रॉल स्लिप है वो भर के देता हूँ, विड्रॉल स्लिप मैंने भर के दिया, तुरंत मुझे हाथों हाथ जितने पैसे चाहिए उतने मिल गए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। जो डिपॉजिट जो होते हैं, वो डिमांड करते वक्त ही करने के तुरंत बाद डिपॉजिटर को मिल जाते हैं, यानी जो विड्रॉई है उसको मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, उससे आगे लग होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। ये होते हैं, इनको एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, जनरली मतलब 6 महीने, 7 दिन, 7 दिन से ये शुरू होता है और 10 साल तक चलता है, 7 दिन से 10 साल तक। अगर फिक्स डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में, पर्टिकुलर मतलब सपोज 6 महीने के लिए, 181 डेज के लिए मैं क्या करता हूँ, फिक्स डिपॉजिट में डालता हूँ। तो 6 महीने के बाद या फिर जो मेरा मैच्योरिटी पीरियड होगा, उस वो खत्म होने के बाद मुझे वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक साथ एक गट्ठा अमाउंट यहाँ पे डालता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में मैं हर महीने या फिर हर 3 महीने, जो भी मेरा मैंने तय किया है, वो महीने में मैं हमेशा मेरा कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते रहता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा अ, तो वो भी उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होगा, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो उसके बाद वो मुझे पैसा वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं मनी स्टॉक। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने बताया था कि मनी स्टॉक जो है वो इन सब चीज़ों से बनता है।
ठीक है। तो उस पे एक कंसेप्ट है M0। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M0 जो है, M0 जो है, M0 जो है वो, M0 में क्या है मेरा, मॉनेटरी बेस। M0 को क्या कहेंगे, मॉनेटरी बेस, यानी पायाभूत जो पैसा है वो। इसको हाई पावर मनी यानी उच्च शक्ति पैसा भी कहा जाता है, उच्च पैसा। ठीक है। तो मॉनेटरी बेस जैसे हाई पावर मनी में क्या होता है, इसमें क्या आता है, बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई, बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई, बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई प्लस लिक्विडिटी विथ बैंक। बैंक के पास जो लिक्विडिटी है वो, बैंक के पास जो लिक्विडिटी है वो, और लोगों के पास जो लिक्विडिटी है यानी लोगों के पास जो पैसा है वो, और बैंक के पास जो, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है गवर्नमेंट के या फिर जो है वो, उसको क्या कहेंगे, मॉनेटरी M0 कहेंगे। ये मोस्ट लिक्विड होता है, यानी तुरंत ही इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये मोस्ट लिक्विड, तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये हो गया M0, आपको ये याद रखना है। आपकी नोट्स में भी दिया है, और ये भी आपको ट्रांसफर, ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है। तो उसके बाद आता है M1। M1 में क्या आएगा, करेंसी पॉइंट्स विथ पीपल एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो इसको हम लोग M1 को क्या कहेंगे, नैरो मनी। उसके बाद आता है M2। M2 में क्या होता है, M1 के साथ साथ जो टाइम डिपॉजिट्स यानी अ, जो अप टू 1 ईयर के, 1 साल के बाद मैच्योरिटी, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल है वो, और करंट डिपॉजिट सोल्ड बाय बैंक। जो बैंक जो है वो करंट डिपॉजिट जो देती है, मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह जो करंट जो है डिपॉजिट ओपन करते हैं वो, तो उसको आएगा M2। M3 में क्या आएगा, M2 प्लस टाइम डिपॉजिट मोर देन 1 ईयर प्लस लोन्स, बैंक जो लोन देती है लोगों को वो। तो ये होगा ब्रॉड मनी, और ये सबसे कम लिक्विड होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा लिक्विड M0, सबसे कम लिक्विड M3। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर यानी जो मनी सप्लाई है और जो रिजर्व मनी है, जो M है और M0 है, इनका जो रेशो होगा उसे हम लोग कहेंगे मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे मनी मल्टीप्लायर। समझ में आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। तो उसके बाद आता है प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन यहाँ पे डेफिनेशन दिया है प्राइस फ्लक्चुएशन का। इन्फ्लेशन यानी चरणवार जनरल राइज इन प्राइस लेवल। जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो अगर बढ़ रही है तो उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन या फिर चरणवार कहेंगे।
चलनवाढ़ के 4 टाइप होते हैं इन्फ्लेशन के। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगता हुआ चलनवाढ़, जिसका रेट 3% से भी कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद आएगा वॉकिंग या फिर ट्रॉटलिंग, चलता हुआ या जो ट्रॉटलिंग यानी जो पैरों पे होता है ना, चलता हुआ या थोड़ा फास्ट वॉकिंग जिसको हम लोग कहेंगे, वो 3 से 10% आता है। रनिंग जो भागता हुआ इन्फ्लेशन है वो 10 से 20% है। हाइपर इन्फ्लेशन वो 20% से ज्यादा है। इन चारों इन्फ्लेशन के प्रकारों में से या फिर डिग्री में से हम लोग कह सकते हैं, ये जो है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन जो है 3 से 10%, ये किसी भी इकोनॉमी को अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन वस्तु की कीमत अगर मान लो कि 100 रुपया है, तो 100 रुपये की वस्तु की कीमत अगले साल सिर्फ 102 रुपया हो गई, तो उस बिजनेसमैन को कोई फायदा होगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इवेंचुअली वस्तु की कीमत जो वो स्टैग्नेट हो जाएगी। स्टैग्नेट होने के कारण जो ओवरऑल इकोनॉमी होगा उसकी ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाएगी। लेकिन अगर वही देखें हम लोग 104 है, तो ये जो एडिशनल 4 रुपया जो है, एडिशनल 4 रुपया जो है वो क्या कर सकता है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, और उसके चलते इकोनॉमी में भी बूस्ट आ सकता है। ठीक है, बूस्ट आता है। तो ये है बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिफ्लेशन यानी क्या, कि वस्तु की कीमतें घट रही है। 100 रुपए की वस्तु थी, अब 95 रुपए में मिल रही है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन मतलब क्या, वस्तु मतलब कीमतें तो बढ़ रही है लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो घट रहा है। 2019 में 100 रुपए की वस्तु थी, वो 100 2020 में 110 रुपए की हो गई, लेकिन 2021 में 113 रुपए हो गई थी। देखा जाए तो वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, लेकिन जो वस्तु 2019 से 2020 में 10% बढ़ी थी, वही वस्तु 2020 में 2021 में सिर्फ 3% के आसपास ही बढ़ी है। तो इसको कहेंगे डिसइंफ्लेशन। उसके बाद होता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होगा, अगर डिफ्लेशन मतलब डिक्लाइन कंटिन्यूस, वस्तु की कीमतें अगर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, तो आगे जाके क्या होगा, वस्तु की कीमतें अगर डिक्लाइन हो गई तो बिजनेस को अफेक्ट करेगा, बिजनेस कम हो जाएगा। तो इसके चलते रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन के चलते क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में गिरावट आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आ जाएगी, ये सब होगा। ठीक है, वही उसका अगला ये होगा कि स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन है यानी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि, ऐसा इसलिए होता है जनरली जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो जो अगर ब्लैक मनी है, फिर इलीगल मनी है, अनअकाउंटेड मनी है, इसकी वजह से ये स्टैग्फ्लेशन आता है। ठीक है, ये इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है इलीगल मनी से। तो उसके वजह, लेकिन एक्चुअली ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली ग्रोथ ना होने के कारण स्टैग्नेशन आता है, और ये क्या होता है, ये जो है वो इन्फ्लेशन स्टैग्फ्लेशन हो रह जाता है। दो मेथड है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के, दो मेथड है। एक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी जो होलसेलर है वो जो कीमत देता है 20 रुपये, अगर वो केली बेच रहा है तो वो 20 रुपये पर डजन जो देगा मैन्युफैक्चरर को, जो फिर किसान को है, फिर जो भी किसान जो होगा। ठीक है, और CPI यानी जो सब्जी मंडी वाला है जो हमें बेचता है या फिर हम लोग जिससे खरीदते हैं, वो 26 रुपये डजन कर देगा। एक्चुअली ये खरा इन्फ्लेशन है, ये सच्चा इन्फ्लेशन है। ठीक है, भारत में अभी CPI ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण दिए गए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, दो कारण होता है। कॉस्ट को पुश करने वाली यानी
किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो मैंने बताया कि वो 4 फैक्टर से होती है, वेजेस, रेंट और प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो कॉस्ट बढ़ती है अगर जो फैक्टर है प्रोडक्शन के, उनकी अगर कॉस्ट बढ़े तो ये कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है कि इसको सप्लाई साइड भी कहते हैं, सप्लाई साइड। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों बढ़ती है? नेचुरल कैलामिटी आ जाए, जैसे कोविड वगैरह आ जाए, जो प्रोडक्शन था वो ठप हो जाए, तो प्रॉफिट जो लॉस होगा उसको रिकवर करने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह बहुत खराब है, तो एक चीज से दूसरी एक मतलब ए शहर से बी शहर जाने के लिए अगर रोड अच्छा है तो 2 दिन लगते हैं, एक दिन में पहुंच जाएगा। लेकिन रोड खराब होने के कारण 2 2.5 दिन लगते हैं, तो ज़्यादा मैन ओवर जाएगा, ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो ज़्यादा अगर खर्चा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इन्फ्लेशन जो होगा। एक 5 मिनट और हम लोग देंगे, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन मतलब अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अंडर डेवलप इंडस्ट्री मतलब पुराना मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत, मतलब ठीक है, पुराना मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉस्ट प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। आउटपुट तो पुराना मशीनरी की वजह से आउटपुट कम आ रहा है, तो आउटपुट जो लॉस, आउटपुट कम आने के कारण जो प्रॉफिट में गिरावट आएगी उसको उसको रिकवर करने के लिए क्या होगा, जो जितने भी माल बन रहा है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, अ, जो स्ट्राइक है उसके लिए आज अ, जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क वो स्टॉप हो जाएगा। तो जब वो डिस्प्यूट खत्म होगा तो मैन्युफैक्चरिंग जो लॉस होगा उसको कम करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ाया जाएगा। तो इसको कहेंगे कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। उसके बाद आएगा डिमांड पुल, जो डिमांड बढ़ाते हैं और डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ। ओके। तो डिमांड क्यों बढ़ता है? अगर मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, यानी मेरा पर्सनल इनकम बढ़ जाए, तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। मेरे जो कंसेप्ट लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है, तो मेरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अ, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ दिया, मतलब लोगों का इनकम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी लोगों का इनकम, पीपल्स इनकम। 7 पे कमीशन आया, ठीक है, तो लोगों का सैलरी बढ़ा तो लोग खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी क्या, जो मेरा इनकम है, गवर्नमेंट का जो इनकम है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या है, कम है। तो जो डेफिसिट होगा उसको फाइनेंस करने के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक तो लोन लेगी या फिर न्यू करेंसी प्रिंट करेगी। इन दोनों कंडीशन में, लोन कंडीशन में या जैसे न्यू करेंसी में, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। मार्केट में अगर क्या होगा, पैसा बढ़ेगा यानी क्रेडिट क्रिएशन होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा यानी डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इलीगल मनी से क्या होगा, या फिर ब्लैक मनी जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली, जो है वो जो लग्जरी आइटम है, और मतलब जैसे कि हाई एंड कार वगैरह है, ज्वेलरी है, घर वगैरह है बड़े बड़े, तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और उसकी डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, जो इन्फ्लेशन होगा। और अगर लग्जरी आइटम्स की इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नेचुरली जो अदर आइटम्स है उसकी भी इन्फ्लेशन, उसकी भी कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया तो लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास मतलब लैंड एक्विजिशन होगा तो पैसा आएगा लोगों के पास, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। ये सब होगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे,
डिमांड बढ़ने के बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक्सपोर्ट मतलब अगर देखिए मैंगो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंगो एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, जो फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी के मैंगो है उनका तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जो डोमेस्टिक मैंगो है उनका भी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट ए। तो ये है इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कंसेप्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हाँ, ये भी है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसा होता है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। हाँ बोलो, प्लीज मेंशन योर डाउट इन चैट बॉक्स। मॉनेटरी पॉलिसी यानी चलन विषय धोरण। ये मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है नोट्स में, डिटेल इन्फ्लेशन में। ठीक है, अगर एक बार आप अगर पढ़ लो तो आपको ये आसानी से आप समझ में आपको आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, फिर एक दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सीआरआर और एसएलआर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब है बैंक्स हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, विथ बैंक और विथ आरबीआई इन कैश। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कम करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को कम करती है या फिर बढ़ाती है। सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीआरआर। और एसएलआर क्या है, सीआरआर जैसे कैश में रखना कब पड़ता है, एसएलआर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं और कैश में रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो सीआरआर है वो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये जो एसएलआर है ये बैंक खुद के पास रखती है। ठीक है, ये सब मतलब जो सीआरआर है, एसएलआर है, या ये सब जो है ये किसके लिए आता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर सीआरआर कम कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि सीआरआर कम होगा मतलब बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, इसका मतलब लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। लोग अगर ज़्यादा खर्चा करेंगे तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुश जो इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। सीआरआर अगर घटा दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीआरआर अगर कम कर दिया तो इन्फ्लेशन ये होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, तो ये सब आपके नोट्स में मेंशन किया गया है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो ऑलमोस्ट so everything that is been said to you is covered from my side, and of course you will you will have your notes as soon as possible. Okay, so we will stop here for today, and I hereby conclude that your 5 lecture series is over. If you have any doubt, you can always reach out to me. You can always ask Sawan sir if there is any doubt. You can have always